मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो। हाँ अब आ रही है। Yes. You have one solution, and in this solution, you have two volatile components A and B. So total vapor pressure of solution. अभी उन लोग volatile है. Volatile का मतलब समझते हैं ना, all of you? Volatile यानी क्या? They have tendency to get escape to vapor phase. They have high tendency. Volatile का मतलब है high tendency to get convert to vapor phase. Now, for example, you have acetone. So मैम acetone का सब्लिमेशन जैसा ना? हाँ सब्लिमेशन जैसा ना? हाँ, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से Solid converted into gas without going through liquid phase. हाँ, बट इधर लिक्विड से गैस में जाता है. ओके हाँ. मॉड्यूल में ये लॉ कहाँ है? Now you search it where it is. I don't know. It there. It will be there. But कौन से पेज पे वो जरा देखो तुम. Then now if you have acetone and if you have water, now you keep both bottle of acetone and water open, तो क्या होगा? एसीटोन जो है वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा बॉटल में से. करेक्ट ना? सो गायब हो गया मीन्स क्या? कुछ Yes. मैजिक हुआ क्या? तो नहीं, मैजिक नहीं होता है. मैजिक ऐसा कुछ नहीं होता है. सो व्हाट हैज हैपेंड कि वो जो तुमने एसीटोन रखा है वो क्या हो गया? वेपर फेज में चला गया. क्लियर? Why it has went to vapor phase? Because it is highly volatile. Clear? Volatile मतलब water Yes, ma'am. 4 दिन तक रखना पड़ेगा तभी जाके वो volatile होगा, क्योंकि उसका volatility rate is less. Water is less volatile than acetone. So now you have two components A and B in a solution and both are volatile. So total pressure of a solution will be what? Partial pressure of A, partial vapor pressure of A plus partial vapor pressure of B. पार्शियल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि दोनों का सम इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए. एंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अब राउल्ट्स ने क्या बताया है कि PA is equal to product of its mole fraction and its pure. अभी कैसा है? सपोज तुमने एक बीकर लिया है, इसके अंदर सिर्फ A है. Another beaker you have, in this you have only B. तो यहाँ पे जो A का वेपर प्रेशर आएगा that is PA नॉट, एंड इधर जो B का प्रेशर आएगा वो PB नॉट रहेगा. सो नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये प्योर A का वेपर प्रेशर है. It's a vapor pressure of pure A, and this is the vapor pressure of pure B. This is clear all of you? So ये जो है product of partial vapor pressure is a product of mole fraction and vapor pressure of pure A. Similarly, PB is equal to mole fraction of B into PB नॉट. अभी सब लोग रीड करो वापस से. फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, partial pressure of each components यानी PA and PB is directly proportional to its mole fraction. Directly proportional to its mole fraction. PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आएगा तो कांस्टेंट आएगा. बराबर ना ऑल ऑफ यू? Yes. देयर विल Yes, बी ma'am. कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है? PA नॉट है. वो कांस्टेंट क्या है? PA नॉट है इन फर्स्ट केस, एंड इन सेकेंड केस इट इज PB नॉट. क्योंकि प्योर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट. इट वोंट चेंज. क्लियर all of you? Yeah.
मैम आपने पीए नॉट के लिए क्या बोला? PA naught is the vapor pressure of pure A and PB naught is the vapor pressure of pure B. Ma'am, will you repeat once? What do you want me to repeat? These partial pressures, how they are equal to mole fraction. Total pressure of solution. Total pressure of solution is a sum. तुम्हारे solution का जो total pressure है वो किसका sum है? जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके पार्शियल वेपर प्रेशर का सम है. टोटल प्रेशर इज PA प्लस PB. सो इसको PA को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A. PB को क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B. Okay, now what is given in your question? For a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in it. So partial vapor pressure is directly proportional to XA. Partial vapor pressure is directly proportional to XB. Clear? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आता है तो कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज PA नॉट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आएगा एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट एंड दिस इज PB नॉट. नाउ व्हाट इज PA नॉट एंड PB नॉट? व्हेन A इज इन प्योर फॉर्म उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम लोग PA नॉट बोलेंगे. जब B प्योर फॉर्म में होगा मीन्स उसके साथ में दूसरा कुछ भी नहीं होगा तो वहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B बोलेंगे. क्लियर? Yes. यस. You can take screenshot of this screen. मैम वोलेटाइल का आपने मतलब बताया था कि सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड होना ऐसा कुछ. नहीं, मैंने लिखा है स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है मैंने. वोलेटिलिटी का मतलब हाई टेंडेंसी टू गेट कन्वर्ट टू वेपर फेज. ओके. या वोलेटाइल लिक्विड यानी लिक्विड टू वेपर फेज. एंड मैम अगर मैम हाँ, प्लीज शो द प्रीवियस लाइन. एंड मैम अगर वोलेटाइल सॉलिड्स बोलेंगे तो डायरेक्ट नहीं, दिस इज ओनली फॉर लिक्विड्स. लिक्विड. ओके वोलेटाइल सॉलिड्स होते ही नहीं है, वोलेटाइल लिक्विड्स ही होते हैं. ओके सेजल. मैम आई वाज राइटिंग. No, you take screenshot. You write it later on. Done? Yeah. Now, all of you, we have already done. अब सेम उसको हम लोग को थोड़ा डिराइव करना है आगे. We have one solution. In this, we have component 1 and 2. एंड बोथ कैसे है? वोलेटाइल कंपोनेंट से. अभी ये मैंने 1 और 2 क्यों लिया है A एंड B के जगह पे? बिकॉज एनसीईआरटी में इसको 1 एंड 2 लिया हुआ है. ओके, तुम 1 एंड 2 लो, A एंड B लो, X एंड Y लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दिस बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड. सो नाउ टेल मी टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी व्हाट? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2. करेक्ट ना? यस. Now P1 को हम लोग क्या बोलेंगे according to Raoult's law? Partial pressure of 1 is what? X1 P1 naught. P2 is what?
x2 x2 p2 नॉट। टू नॉट। अब मैं ये वैल्यूज को क्या करूंगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मेरा टोटल प्रेशर क्या आएगा, x1 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो तुम्हारा अगर तुम्हें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का, then you have to use this formula. This is clear all of you? Now suppose you have only एक ही मोल फ्रैक्शन है तुम्हारे पास में, सपोज x2 प्रेजेंट है, सो मैं क्या करूंगी, x1 is what, 1 minus x2, all of you we have done this na, x1 plus x2 is equal to 1, so x1 is 1 minus x2। अब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगी यहाँ पे, सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 1 माइनस x2 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। ब्रैकेट्स को Ma'am. ओपन करते हैं, बोलो। How that x1 plus x2 came? अभी मुझे बताओ टोटल परसेंटेज जो होता है, दैट इज आउट ऑफ टोटल परसेंट जो निकालते हैं हम लोग, 100। 100। फ्रैक्शन किसके बीच, फ्रैक्शन इज ऑलवेज आउट ऑफ, फ्रैक्शन इट इज ऑलवेज आउट ऑफ 1 ना। Yes. So you have a fraction, x1 x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है ना, सो फ्रैक्शन का टोटल कितना होगा, हमेशा 1 रहेगा। यस करेक्ट ना? Didn't get you, ma'am. See, if you have, ठीक है चलो, x1 is what, n1 upon n1 plus n2, x2 is what, n2 upon n1 plus Okay, n2। like that. x1 plus x2, it will become 1. 1:1. Okay. Yes, ma'am. Now all of you just pay attention here. We have x2 common. दोनों इसमें x2 कॉमन है, तो मैं बाहर x2 ले लेती हूँ, so it will become p2 नॉट minus p1 नॉट। Okay, so total pressure of a solution is what, p1 naught plus p2 naught minus p1 naught into x2। Clear? Yes. So this derivation is very important, बोर्ड्स में भी तुम लोग को आ सकता है ये derivation। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैम ये दोनों फॉर्मूला टोटल प्रेशर के लिए ही है ना? हाँ दोनों सेम ही आएगा, दोनों से भी आंसर सेम ही आता है, बट मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ यूज करना, इट इज इजियर देन दिस, बट इट इज देयर इन योर एनसीईआरटी, तो मैंने ये करके बताया है तुम लोग को। मेरे हिसाब से तुम लोग को भी ये दोनों में से यही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इट इज इजी। नेक्स्ट स्क्रीन, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अभी हम लोग ने ये जो अभी पढ़ा, ये जो कुछ भी अभी हम लोग ने डेरिवेशन किया, दिस वाज फॉर अ लिक्विड फेज, ठीक है। अभी सोल्यूशन कैसा है, वोलेटाइल है, इट इज अ वोलेटाइल सोल्यूशन इज वोलेटाइल। इसका मतलब अभी सपोज यू हैव अ कंपोनेंट ए एंड 1 एंड 2, तो लिक्विड फेज में भी रहेगा एंड इट इज वोलेटाइल, मींस ये वेपर फेज में भी रहेगा ना कंपोनेंट। यस, इट इज गेटिंग वोलेटाइल मींस इट इज गेटिंग एस्केप टू वेपर फेज, मींस इसका कुछ अमाउंट वेपर फेज में भी रहेगा क्योंकि वो वोलेटाइल है। यस ऑल ऑफ यू?
करेक्ट Yes. ना? Yes. तो अगर सपोज मैंने तुम लोग का यहाँ पे मैंने 10 ग्राम्स वन लिया है फर्स्ट कंपोनेंट, तो हो सकता है सिंस इट इज वोलेटाइल तो 10 में से 6 ग्राम्स लिक्विड में हो और 4 ग्राम्स वेपर में हो, ऐसा हो सकता है। अगर मैंने सपोज 10 ग्राम्स 2 लिया है तो हो सकता है कि वो 4 ग्राम्स लिक्विड में हो और 6 ग्राम्स वेपर फेस में हो। तो अपने को वेपर फेज में भी कितना है कंपोनेंट 1 एंड 2 ये अपने को कैलकुलेट करना है। अभी लिक्विड फेज में कितना है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? We have x1 and x2 ना? Yes, all of you. We have x1 and x2. मैं एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ पे सबके एब्रीवेशंस लिख लेती हूँ। PT is total vapor pressure of solution. P1 is partial vapor pressure of first component. P2 is partial vapor pressure of second component. X1 is mole fraction of 1 in liquid phase. Yes, all of you. This is clear. अभी ले लो स्क्रीनशॉट, चलो। Done. Done. Now next is composition of vapor phase. ठीक है। So अभी हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं कि let y1 be the, मैम आप लास्ट स्क्रीन पे आइए ना, वो ठीक एब्रीविएशन है मैं बताती हूँ। पहले ये अभी इधर ध्यान दो। Let y1 be the mole fraction of first component in vapor phase. ठीक है। वेपर फेज में उसका जो कंपोजिशन है उसको हम लोग y1 से डिनोट करते हैं एंड y2 be the mole fraction of two component in vapor phase. ठीक है। By using Dalton's law, सबको मालूम है ना Dalton's law of partial pressure, states of matter, Dalton's law of partial pressure. Yes, can anybody? अभी हुआ था ना 11th स्टैंडर्ड का फुल सिलेबस। यस मरीन। Hello. हाँ बोलो। Am I audible? यस यस। हाँ. So ma'am, Dalton. क्या हुआ, गायब हो गया? So who will give Ma'am, this in answer? container, the partial pressure Ma'am, exerted by all the total gas is equal to total pressure. ऐसी था? हाँ Ma'am, total pressure is equal to pressure, each pressure. Exerted by each pressure exerted by each gas. yes. So for example, yes, all new students, I'm just explaining it in short for you all. You have a container in which you have a gas. Suppose you have two gas A and gas B. So जो total pressure आएगा, total vapor pressure जो आएगा। Hello ma'am. हाँ बोलो मरीन बोलो। हाँ मैम, नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ बोलो। तो मैम, Dalton's law of partial pressure state that the pressure exerted by an individual gas in a mixture
of two or more gases is called partial pressure of that gas. And the statement is the total pressure of the mixture of two or more gases, two or more gases of non-reactive, two or more of non-reactive gases is the sum of the partial pressure of individual gases in the mix. Okay, correct. So total pressure, they both should be non-reactive with each other. A and B should be non-reactive with each other. So total pressure will be what? Partial pressure of A plus partial vapor pressure of B. अभी जो हम लोग ने इसके लिए किया वो सेम ही है, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन होने दो, लिक्विड का होने दो या फिर गैस का होने दो, टोटल प्रेशर विल बी दी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट in the sum of the partial pressure of the components present in a particular mixture or a solution. But यहाँ पे अभी राउल्स लॉ ने अपने को क्या बताया, PA is equal to XA into PA naught. But डेल्टन्स ने क्या बताया, PA is equal to XA into total pressure. So ये XA नहीं है, ये YA है. And PB is what? YB into total pressure. Okay, ये डेल्टन्स ने बताया है. सो बाय यूजिंग डेल्टन्स लॉ हम लोग को क्या मिलेगा, Y1 is equal to P1 PT. Yes, all of you. And Y2 is equal to P2 upon PT. Now P1 by Raoult's law is what? P1 not X1. टोटल प्रेशर क्या आएगा, P1 not X1 plus P2 not X2. P2 is what? P2 not X2 upon P1 not X1 plus P2 not X2. बोलो. आवाज नहीं आ रहा है. आ रहा है मैम, क्लियर है. क्या बोल रही है? मैम ये वाला स्टेप रिपीट करो ना. शालू ये समझा? हाँ मैम. तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, YA is what? PA PT. हाँ मैम. PA divided by PT. YB is equal to what? PB PB divided by PT. तो वही लिखा है ना, मैंने सिर्फ इधर 1 के टर्म्स में लिखा है. अभी P1 हम लोग ने पढ़ा ना, राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ X1 एंड P1 नॉट. यस, P2 यानी क्या, P2 नॉट X2. एंड टोटल प्रेशर के लिए अभी हम लोग ने इधर डेराइव किया ना, वी हैव डन दिस डेरिवेशन ना, यही मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया है. ओके, क्लियर? So all of you can take screenshot of this screen. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाला स्क्रीन भी बताती हूँ. Yes, Suraj, you want screenshot for this now? Take it fast. Done, ma'am. इसमें मैंने सिर्फ Y1 और Y2 लिखा है, क्या है बाकी तुम लोग को ये मालूम ही है ना. Yes, ma'am. पीछे वाले स्क्रीन पे है ही बाकी सबका.
Now Raoult's law is a special case of Henry's law. Now suppose you have means अभी हम लोग बात कर रहे थे Raoult's law क्या बताता है? It is for two volatile liquids, correct ना? Yes. Raoult's law is for two volatile liquids. And Henry law किसके लिए है? Gas in liquid. Correct ना? So two volatile liquids के लिए P1 is equal to X1 P1 not होता है, and gas in liquid के लिए क्या होता है? Henry law is what? P KH X. Yes, all of you correct? So in Yes. this case also partial pressure is directly proportional to mole fraction, and here also partial pressure is directly proportional to mole fraction. Yes. Yes. सिर्फ जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन राउल्ट्स लॉ P1 naught is constant, correct? And in Henry's law KH is constant. Yes, all of you correct? Yes. So difference क्या है दोनों लॉ में? KH is getting deferred by P1 naught. बाकी सेम है ना? Yes, ma'am. KH differs by P1 naught, and therefore Raoult's law is a special case of Henry law. समझा? It is just a same. Raoult's law and Henry law दोनों same है, सिर्फ difference है Raoult's law में KH यूज होता है और यहाँ पे P1 naught यूज होता है. मैम दोनों कांस्टेंट के लिए ही है ना? हाँ, दोनों भी कांस्टेंट ही है. सो हेनरी लॉ को रेफर करके ही राउल्ट्स ने उसका लॉ बनाया है. ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट. मैम वो स्टेटमेंट नहीं समझा KH diffuses by P1 naught. हाँ मीन्स सी यहाँ पे भी तुम्हारा P1 है, यहाँ पे X है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये पूरे इक्वेशन में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. ओके, हियर ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो डिफरेंस क्या है? P1 naught और KH. सो KH इज मीन्स KH जो है हेनरी लॉ का जो KH है वो क्या कर रहा है? राउल्ट्स लॉ में डिफर कर रहा है. किससे डिफर कर रहा है? P1 नॉट से. बराबर ना? अगर वहां पे P1 नॉट नहीं होता था तो शायद तुम्हारा राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ सेम हो जाता था. Yeah. सो KH इज डिफरिंग बाय वो differs है. नॉट. P1 not. P1 नॉट. मैम आपने वो differ लिखा है. हाँ, डिफर. मैम Diffuses. सेम केस P2 में भी होगा ना? क्या क्या? सेम केस P2 में भी हाँ होगा? हाँ, P2 में भी होगा. मैंने ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए बताया है. सेम विल बी अप्लाइड फॉर नेक्स्ट गैस ऑल्सो. 3 गैस रहेंगे तो तीनों के लिए ये डिफरेंस आएगा. Ma'am, can you show last slide? Done, ma'am. Now, vapor pressure of solution of solid in liquid. अभी हम लोग ने जो पढ़ा वो दोनों भी volatile liquids था. Yes, all of you.
we have studied till now, that was the volatile liquids, correct ना? अभी यहाँ पे क्या है, solid in liquid है, क्या है, solid in liquid. मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं बोल ही नहीं रही हूँ। Now suppose you have two beakers. In this beaker you have pure water, and in next beaker तुमने क्या किया है, solid solute add किया liquid के अंदर. So for example you have sugar and water. शुगर कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, बराबर ना? Yes. नाउ इसका वेपर प्रेशर हम लोग क्या लेते हैं, P1 नॉट लेते हैं, और ये सोल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर हम लोग क्या लेंगे, P1 लेंगे, क्या लेंगे, P1 लेंगे. P1 इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. यस ऑल ऑफ यू. सो मुझे बताओ अभी P1 नॉट बड़ा रहेगा कि P1 बड़ा रहेगा? P1 not. Yes, P1 not will be more than P1. Why? Because it is pure. Okay, because it is pure. और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अभी वेपराइजेशन होता है तब भी वेपर प्रेशर आता है. ऑल ऑफ यू, वी हैव स्टडीड H2O liquid gets convert to H2O gas, है ना? प्रेशर बिल्टअप होता है and then gas again gets convert to liquid. Clear all of you? So मैम जिसमें शुगर प्लस H2O है तो उसमें मतलब H2O की डेंसिटी बढ़ जाएगी ना शुगर की वजह से, तो वेपराइजेशन मतलब लेट होगा. हाँ, करेक्ट. सो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा क्या? वेपर प्रेशर क्या होगा? यस ऑल ऑफ यू. जब भी वेपराइजेशन होता है, अभी वेपर प्रेशर आने के लिए वेपराइजेशन होता है सबसे पहले. तो नाउ टेल मी, क्या वेपराइजेशन लेयर वाइज होता है? बताओ, क्या वेपराइजेशन लेयर वाइज होता है? नाउ सपोज दी वेपराइजेशन जो अपने को रेन आता है, क्लाउड्स बनता है, वेपराइजेशन से होता है ना? सी वाटर, water cycle से. यस मैम. वाटर क्या होता है, वेपराइज होता है. यस मैम, लेयर वाइज वेपराइजेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? अभी जो अगर सपोज हम लोग एक लेक कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे वेपराइजेशन हो रहा है, तो क्या लेक का जो बॉटम का वाटर है वो पहले वेपराइज होगा, फिर सरफेस का वाटर वेपराइज होगा? Surface का. नहीं ना, सरफेस का ना. तो लेयर वाइज होता है ना वेपराइजेशन. जो सरफेस का लेयर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है. अभी जैसे ये सरफेस लेयर है, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर ये सरफेस पे आ जाएगा, फिर ये वेपर में जाएगा, फिर ये वेपर में जाएगा, फिर ये, ऐसे करते करते लेयर वाइज पूरा वाटर बॉडी क्या होता है, वेपराइज होता है. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अभी इफ यू कंसीडर दिस सरफेस लेयर विच इज गेटिंग वेपराइज, तो यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? जितने भी है सारे वाटर के मॉलिक्यूल है 7. yes all of you, there are 7 molecules of water. okay, but अगर अभी इसमें शुगर एंड वाटर में, शुगर क्या होता है, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, करेक्ट?
sugar gets completely dissolved in water. तो उसके वजह से क्या होगा, सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, शुगर के आ जाएंगे. ये जो ब्लू कलर के मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ये किसके हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स है. यस ऑल ऑफ यू, some of the water molecules will get substitute by sugar molecules. yes बोलो. Yes, ma'am. Yes. so उससे क्या होगा, अभी वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5, यानी प्योर केस में 7 है, बट सोल्यूशन में क्या हुआ है, सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका अमाउंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. यस तो जो Yes. वेपर पे, यहाँ पे जो वेपर फेस में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इट विल बी 7, बट इधर कितने मिलेंगे, सिर्फ 5 मिलेंगे. बराबर ना. तो अगर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा कि नहीं आएगा. कम अगर आएगा मैम. तुम्हारे मोल कम है, अभी 7 molecules will exert more pressure और 5 molecules will exert more pressure. 7. आपका 7 ना, 7. तो प्योर वाटर का क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन. करेक्ट. Yes. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू. वो सोल्यूशन में भी मींस वो लेयर वाइज ही होंगे इवापोरेट अगर करना हाँ ऑफ कोर्स, सारा लिक्विड बॉडी में वेपर सरफेस वाइज ही वेपराइजेशन होता है. सरफेस का लेयर सबसे पहले वेपराइज होता है. Now you can see here in this graph, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 है और ये पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन 1 है. इसका मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1 एट दिस पॉइंट. इसका मतलब इधर सिर्फ एंड सिर्फ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है. करेक्ट ना. x1 plus x2 is equal to 1, but x1 is 1. इसका मतलब क्या है, x2 is 0 ना. Yes. so यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, ये जो पॉइंट है, ये वेपर प्रेशर जो आएगा यहाँ पे वो किसका आएगा, प्योर का आएगा. प्योर Yes. वाटर का वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. क्लियर. सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर वेपर प्रेशर कितना है, 0 है. x1 is 0, so mole fraction vapor pressure is also 0. Yes. Yes, ma'am. And when x1 is 1, so p1 not, जब भी x1 आएगा means there will be only one component present, तो वो पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका रहेगा, प्योर 1 का रहेगा. Okay, so what we can conclude, p1 is directly proportional to x1, है ना. तुम्हारा जितना मोल फ्रैक्शन उतना तुम्हारा प्रेशर. क्लियर ऑल ऑफ यू. Yes. Yeah. अब इधर x2 x1 is 0, so x2 इधर क्या रहेगा, 1 रहेगा. करेक्ट ना. so ये पॉइंट पे जो तुम्हें वेपर प्रेशर आएगा वो किसका रहेगा, प्योर का रहेगा, p2 नॉट का. क्लियर. अब इधर जा रहे हैं, इधर क्या हो गया, x2 0 यानी p2 0, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा आएगा. क्लियर. तो ये तुम्हारा जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ 1 है एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ 2. क्लियर ऑल ऑफ यू. मैम एक बार वो 2 वाला समझाओ. हाँ अभी x1 ये पॉइंट पे x1 0 है, इसका मतलब x2 1 आएगा कि नहीं. Yes. क्यों, कैसे आएगा, x1 वो plus x1 plus x2 x2 is equal to 1.
हाँ अभी x ये पॉइंट पे x1 1 है मतलब x2 0 है। Yes. जितना तुम्हारा मोल फ्रैक्शन उतना तुम्हारा वेपर प्रेशर की नहीं। Yes. इफ ये पॉइंट पे सिर्फ x2 प्रेजेंट है तो मुझे यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ सेकेंड का होगा। Yes. तो मुझे P2 नॉट मिलेगा ना। और Yes. इस तरफ मैं जा रही हूँ तो वो x2 डिक्रीज हो रहा है ना, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। Okay. यस ऑल ऑफ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखो। चलो फटाफट उसको साइड में लिख लो, फिर बाद में नोट्स बनाने के टाइम पे लिख लेना। अभी मैंने ये जो यहाँ पे जो केस एक्सप्लेन किया इसका मैंने रीजन तुम लोग को एक्सप्लेन किया है। इसका रीजन तुम लोग को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। अभी आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। मैम ये P2 नॉट भी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ही होगा ना? वो सल्यूट का होगा ना, 1 अगर सॉल्वेंट है तो 2 सल्यूट होगा ना। हाँ अभी ये केस जो है ना तुम्हारा मीन्स सॉलिड केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जस्ट मैंने तुम्हें 2 का जस्ट लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? तो वो क्योंकि सेकेंड लिक्विड के लिए होगा। हाँ सेकेंड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, ये सॉलिड के लिए नहीं है एप्लीकेबल। हाँ ये जो मैंने सेकेंड वाला ग्राफ बनाया क्यों नहीं है एप्लीकेबल, क्योंकि शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है ना, तो P2 नॉट क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। या तो मैम जो आपने P1 बनाया वो प्योर H2O के लिए और P2 शुगर प्लस H2O है। नो नो इट इज फॉर प्योर। एक काम करो तुम लोग 2 बनाओ ही नहीं अभी यहाँ पे। डोंट मैंने वो सिर्फ एक तुम लोग को मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। दैट इज फॉर वोलेटाइल लिक्विड व्हेन बोथ आर लिक्विड ना, वो केस के लिए मैंने वो समझाया था तुम लोग। वो लिखो ही मत अभी यहाँ पे। Yes, all of you have to write down the reason why P1 not is greater than P1.
Yes, all of you, it's done. Yes. सेजल रीड करो क्या लिखा रीजन तुमने. Ma'am, why P1 not is greater than P1? That is because the presence of H2, presence of moles of number of moles in the upper surface of pure upper layer will get evaporated first. That is, the number of moles will also be considered. P1 naught number of moles is greater than P1 naught of moles, P1 number of moles, and I have made the diagram too. So of in the pure solution H2O. of sugar and water, in solution of sugar and water, the number of water molecules which are present on the surface layer is less compared to Yes. that of pure solvent. Yeah. If number of moles are less on the surface, then in vapor phase also number of Moles will be less. will be less in the solution. Molecules are less, then vapor pressure will be less. Okay. इनडायरेक्टली तो हम लोग को मॉलिक्यूल्स और वेपर प्रेशर को इक्वेट करके लिखना है ना. हाँ, means तुम yes, they are related ना. Mole fraction and vapor pressure is directly proportional. Okay. Now all of you pay attention. Next is the ideal solution. Ideal solution. So सबसे पहला point ideal solution का. Ideal solution obey Raoult's law. Ideal solution obey Raoult's law. Over entire range of concentration. Over entire range of concentration. Enthalpy of mixture is 0. It means no energy is absorbed. No energy is absorbed or evolved. No energy is absorbed or evolved in a solution. मैम वो पहला सेकंड पॉइंट में आपने वो क्या लिखा है डेल्टा एच मिक्सचर. Means change in enthalpy of mixture is 0. No energy is absorbed or evolved in a solution. Change in enthalpy of volume is 0. No change in volume. Okay. Now we have again ideal solution में this is the A component. ये बीकर के अंदर A component है. ये बीकर के अंदर B component है. And अभी हम दोनों को mix कर रहे हैं. Here we have a mixture of A and B. Okay. So the type of the strength of intermolecular interaction
the strength of intermolecular interaction between A and BB is equal to the strength of intermolecular interaction between AB. This is clear all of you? So BB, यहाँ पे जो इंटरेक्शन बॉन्ड बनेगा दैट इज बिटवीन ए एंड ए, करेक्ट ना? सिर्फ ए ही है यहाँ पे, इधर जो बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ बी के बीच में बॉन्ड्स होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनेगा वो ए बी के बीच में बॉन्ड्स होगा, और सबके बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है बिटवीन ए बी इज इक्वल। मैम वो थर्ड वाले बीकर में तो ए भी बना है तो उसमें भी इक्वल होगा। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल होता है। Then the vapor pressure of AB solution is lie between the vapor pressure of AA and BB. Vapor pressure of A and B components. ओके, ए एंड बी के बीच में होता है। जैसे अभी ए का वेपर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, बी का 12 एटमॉस्फेयर है, तो ए बी का ए 10 और 12 के बीच में लाई करेगा। मैम मतलब एवरेज लेने का? एवरेज नहीं, बीच में लाई करेगा, बट नॉट एवरेज। Ideal solutions are structurally same. Are made up of structurally same components. Example, benzene, toluene. सेम है ना स्ट्रक्चरली? यस ऑल ऑफ यू? मैम मतलब ये आप एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का दे रहे हो? हाँ, बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर का बता रहे हो कि अलग अलग दोनों? मिक्सचर सॉल्यूशन दोनों से बनेगा ना। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, फ्लोरोइथेन, they are ideal solution. Since they are structurally same, they form ideal solution. But let me tell you, ideal solution does not exist. जैसे ideal gas exist नहीं करता है, जितने भी gas exist करते हैं they are real gases, वैसे ही ideal solution भी exist नहीं करता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि AA BB का जो इंटरेक्शन है that is equal to AB का इंटरेक्शन, है ना? आइदर तुम्हारा इंटरेक्शन सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाता है या फिर वीक हो जाता है। आइदर वेपर प्रेशर तुम्हारा प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होता है या फिर कम होता है, बट ऐसा बीच में लाई करता है ऐसा नहीं होता है। सो एक्चुअल जो मींस जो सॉल्यूशन एक्चुअली बनते हैं दे आर नॉट आइडियल सॉल्यूशन। ये भी एग्जांपल जो दिया है ये
नियरर टू आइडियल सोल्यूशन है. दे आर नॉट परफेक्टली आइडियल, 100% आइडियल नहीं है. Clear all of you? Now just see this graph. See this graph. You have two components 1 and 2. x1 यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इधर जो मुझे वेपर प्रेशर मिलेगा वो प्योर 1 का मिलेगा. Yes all of you? अभी इस तरफ मैं जा रही हूँ तो x1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और x2 क्या है, इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे x2 is 1. सो यहाँ पे जो मुझे वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसका मिलेगा, प्योर 2 का मिलेगा. यस ऑल ऑफ यू? इस तरफ जा रही हूँ मैं तो 1 जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आएगा. इट इज गेटिंग डिक्रीज. 2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सो इसका ग्राफ भी देखो इंक्रीज हो रहा है. Okay, this is the vapor pressure of 1, partial vapor pressure of 1, and this is the partial vapor pressure of 2. और ये दोनों, this is the total vapor pressure. Clear all of you? Yes. Yes, all of you take screenshots fast. Ma'am, show last screen. See, if you want to make a proper notes, then you can go through the videos on YouTube. Video number. This will be in video number 5. चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन. सो नॉन आइडियल सोल्यूशन का पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है, एंड देन हम लोग उसके टाइप्स करेंगे. ठीक है. So first property of non-ideal solution, it does not obey Raoult's law. फिर enthalpy of mixture is not equal to 0. Volume of mixture is not equal to 0. Either it is positive or negative. Either positive or negative.
Then the interactions of AB is either stronger or weaker than that of मैम ये पूरा अपोजिट होगा ना उसके? हाँ पूरा अपोजिट AA and BB. Vapor pressure of AB will be higher or lower than that of AA and BB. ठीक है. Suppose higher है, if vapor pressure is higher, then it show positive deviation. It forms positive deviation solution. And if it is lower, then it show negative deviation solution. Clear? अभी ये नेगेटिव डिविएशन क्या है, पॉजिटिव डिविएशन क्या है, ये भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. ये बाकी 5 पॉइंट्स क्लियर है ऑल ऑफ यू? दे आर नॉट स्ट्रक्चरली सेम. They are not structurally same. Take screenshots fast. Solution with positive deviation. Delta H is positive. Heat is absorbed. Volume of mixture is positive. Now here what you can observe is, इसको ये जो ऐसा ग्रीन में बनाया है ना, ये आइडियल का ग्राफ है. ये देखो ये वाला ग्राफ है आइडियल का. अब ये आइडियल ग्राफ में डिविएशन आया है. आइडियल मीन्स ये तुम्हारा जो है, ये वाला जो ग्राफ है दैट इज एन आइडियल का ग्राफ. अगर ये ग्राफ थोड़ा सा भी डिविएट होता है देन दैट इज फॉर नॉन आइडियल. सो यू कैन सी हियर जो ब्लू से जो ग्राफ है दैट इज फॉर नॉन आइडियल. ओके, एंड वो आइडियल ग्राफ के ऊपर है इसीलिए उसको पॉजिटिव बोला है, सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? सिंस आइडियल का पॉजिटिव होता है, नॉन आइडियल का नेगेटिव होता है. नो, नॉन आइडियल का ही पॉजिटिव है, नॉन आइडियल का ही नेगेटिव है. बट अभी ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है वो सोल्यूशन का है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है. नाउ व्हाई पॉजिटिव डिविएशन? क्योंकि आइडियल ग्राफ के ऊपर ग्राफ आया है. आइडियल ये तुम्हारा जो ग्राफ है दैट इज एन आइडियल का ग्राफ, उसके ऊपर ग्राफ आया है ये सोल्यूशन का, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का. तो इसीलिए उसको सोल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Now pay attention here. This is ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट पे x1 वही जो सेम हम लोग ने अभी जो आइडियल के लिए किया वही है.
ये पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 0 है, तो ये क्या है, x2 1 है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x2 नॉट। इधर x1 है, ये 1 क्या हो गया, डिक्रीज होके सॉरी इंक्रीज होके 1 हो गया है, और 2 क्या हो गया है, डिक्रीज होके 0 हो गया है। तो ये जो मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है इसको मैं बोलती हूँ x1 नॉट, सॉरी p1 नॉट। x1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी x1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ ऐसा आया है। x2 डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आया है। ठीक है, अब मैं एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन लेती हूँ। I'll just take one particular mole fraction. Now at that particular mole fraction मेरा जो वेपर प्रेशर है आइडियल का इतना है। This is for ideal solution. और ये जो है वो पर्टिकुलरली किसके लिए है, नॉन आइडियल के लिए। तो अभी यहाँ पे तुम लोग को क्या दिख रहा है, आइडियल का ज्यादा है कि नॉन आइडियल का ज्यादा है वेपर प्रेशर? आइडियल का कम रहता है, बाद में ज्यादा हो जाता है। नॉन आइडियल का पहले ज्यादा होता है, बाद में कम। नहीं, ये पॉइंट पे तुम्हें क्या, ये एट अ कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन व्हाट आर यू फाइंडिंग, नॉन द आइडियल वेपर प्रेशर at constant mole fraction, vapor pressure of ideal is less than vapor pressure of non-ideal. So ये कैसे क्यों मैम? हुआ है? बोलो। मैम कैसे पूछ रहा हूँ? हाँ वही, मैं भी वही पूछ रही हूँ, कैसे ये क्यों हुआ रहेगा? दैट इज, अभी वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है ना, बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। जितना तुम्हारा बॉन्डिंग वीक होगा उतना तुम्हारा सोल्यूशन, उतना तुम्हारा कंपोनेंट कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। यस, इट विल हैव मोर टेंडेंसी टू गेट एस्केप टू गैस फेज। जितना ज्यादा टेंडेंसी रहेगा गैस फेज में जाने का उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। Yes, all of you, if I keep a temperature of 50 degrees Celsius and I have two solution, I have acetone, I have water, तो कौन 50 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा वेपर में जाएगा? एसीटोन। एसीटोन जाएगा ना। एसीटोन। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, एसीटोन का आएगा कि वाटर का आएगा? एसीटोन का। एसीटोन का। तो ऐसा क्यों हुआ है, एसीटोन का वेपर प्रेशर ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस पे, एसीटोन गैस फेज में ज्यादा अमाउंट में गया देन दैट ऑफ वेपर। ऐसा क्यों हुआ? दैट इज बिकॉज एसीटोन इज हैविंग वीकर इंटरैक्शन देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यस ऑल ऑफ यू, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, whereas in acetone molecule they have London dispersion force. Correct ना? Acetone is non-polar. Non-polar के Yes, बीच में ma'am. क्या होता है? London dispersion force डिस्पर्जन होता फोर्स। है। So जिसकी वजह से acetone का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है than that of water. So same case is over here for ideal and non-ideal solution. For ideal and non-ideal solution, non-ideal का वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि उसके जो इंटरेक्शन है वो कैसे है, वीकर है देन दैट ऑफ आइडियल। तो उसका गैस में जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, गैस में जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? मैम मतलब नॉन आइडियल बॉन्ड वीक है इसलिए वो जल्दी। हाँ, इंटरेक्शन यानी बॉन्ड्स। मैम ये तो आपने ये वो पॉइंट पे लिया, अगर हम लोग दूसरे पॉइंट लेते नीचे वाले पे तो उल्टा हो जाएगा। मीन्स मैम मतलब आपने यहाँ पे particular- हाँ, मैंने नॉन आइडियल में क्या लिखा है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज आइदर स्ट्रॉन्गर और वीकर
देन दैट ऑफ AA एंड BB. तो ये वाला केस कौन सा है? वीकर वाला केस है ना. हाँ. So interactions between non-ideal solution is weaker than that of ideal. और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं AB interactions are weaker than that of AA and BB interactions. This is clear, all of you? मैम ये 4th पॉइंट में दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही है. सेम ही आएगा ना दोनों मतलब. यू हैव ए, ये बीकर में ए है, ये बीकर में बी है. अभी आइडियल में क्या होता है? ए का इंटरेक्शन बीबी का इंटरेक्शन सेम होता है ना, एंड दैट इज इक्वल टू AB का इंटरेक्शन. यस. हाँ. और तुम्हारा नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो AB बना है उसका इंटरेक्शन वीकर है देन दैट ऑफ आइडियल. तो ये तुम्हारा आइडियल ही है ना. वो A और BB वाला दोनों का. हाँ, AB जो है दिस इज फॉर आइडियल. तो आइडियल में तुम्हारा AB का जो इंटरेक्शन है दैट इज इक्वल टू A का और BB का ना. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, AB का इंटरेक्शन दिस इज फॉर नॉन आइडियल. AB का इंटरेक्शंस आर वीकर देन दैट ऑफ AB, AA एंड BB. मींस उसके जो प्योर कंपोनेंट्स है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा है? वीकर है. ओके ऑल ऑफ यू. लिया स्क्रीनशॉट सब लोग ने. नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन. अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा रहेगा ये जो ग्रीन कलर का बनाया है उन लोग ने वो क्या है? आइडियल है. करेक्ट ना? आइडियल सॉल्यूशन है. अब ये जो नॉन आइडियल का है वो इसके नीचे आ रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है? नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है. क्या कर रहा है? नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है. ओके. अभी यहाँ पे भी देखो, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेती हूँ. ये तुम्हारा ये किसका है? नॉन आइडियल का है. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल वन. दिस इज नेगेटिव. इसका मतलब हीट क्या हुआ है? यहाँ पे रिलीज हुआ है. अभी यहाँ पे क्या अपने को ऑब्जर्वेशन आया है? एट कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन, एट कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन क्या है? नॉन आइडियल का मतलब कम है. वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल कैसा है? लेस है ना देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल. सो अभी ये लेस क्यों हो गया वेपर प्रेशर? ऑल ऑफ यू टेल मी. बॉन्ड की वजह से ही क्या? ऑफ कोर्स बॉन्ड की वजह से है. बताओ ऑल ऑफ यू क्या होगा? नॉन आइडियल में इंटरेक्शंस कैसे हो गए हैं? वीकर है, सेम है कि स्ट्रॉन्गर हो गए? नॉन आइडियल में वीक हो गए और आइडियल स्ट्रॉन्ग. नो वन, nobody knows it. आइडियल में मैम वीक हो गया. नॉन आइडियल में मैम वीक हो गया और आइडियल में स्ट्रांग हो गया. इससे नॉन आइडियल के गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, वेपर प्रेशर उसका ज्यादा है.
हाँ, तो नॉन आइडियल में इंटरेक्शन कैसा हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है ना? यस ऑल ऑफ यू, Yes. इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, इसीलिए वो वेपर फेस में नहीं जा रहा है। वेपर फेस में नहीं जा रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस शालू, बराबर ना? हाँ मैम। मैम मतलब नॉन आइडियल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है ना। हम्म। मैम आपको एक बार जरा और पॉजिटिव डेविएशन का स्लाइड दिखाना है। हाँ हाँ हाँ। ऑल ऑफ यू हैव टू रीड। आज मैंने जितना भी करवाया है उसको प्रॉपरली पढ़ के तुम लोग को नेक्स्ट वीक में आना है। एंड आई एम गोइंग टू एक्सटेंड द लेक्चर आफ्टर 9 o'clock में। ये टॉपिक मुझे खत्म करना है, ये पूरा स्लाइड्स मुझे खत्म करना है, उसके बाद ही मैं लेफ्ट करूंगी। जिसको भी 9 o'clock को लेक्चर्स वगैरह है यू कैन अटेंड, अगर तुम्हें नहीं अटेंड करना है यू कैन लीव। इसका मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सो यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स। Yes, you can take screenshot fast. And this is very important topic का ये जो solution है ideal, non ideal solution, doubt, Done, ma'am. इसके ऊपर means mostly questions आते हैं exam में. So this is very important and this is theory, completely theory. So you need to read NCERT for this. Get prepare and come for next lecture. हाँ, मैं questions पूछूंगी ये topic पे। मैम आप ये वाला एक्सटेंड कर रही हैं कि अगला वाला एक्सटेंड करेंगी? एक मिनट। Yes, all of you note down screen fast. मैम
आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हेलो
Yes, all of you. Let's continue. Next is azeotropic solution. Ma'am, हाँ बोलो. we are extending lecture today. Yeah, for 15-20 minutes. We just have to do two topics, that is minimum boiling azeotropics and maximum boiling azeotropics. So, you want to ask something? Someone was asking some doubt. Yes? Yes, no questions? ठीक है. So azeotropic mixture is constant boiling mixture. Constant boiling mixture means what? Constant boiling mixture means what? Their difference in boiling point will be negligible. Now, for example, you have a component which is boiling at 50 degrees Celsius, and जो B component होगा, B component जो है उसका boiling point suppose 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या फिर 55 डिग्री सेल्सियस है. तो जो डिफरेंस है A एंड B कंपोनेंट के बीच में वो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का है, एंड 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग. Okay, so such type of mixture is known as azeotropic mixture. Thank you. Clear all of you? हम एक बार फिर से समझाओ. नेटवर्क. See, you have two components, component A and component B. So now suppose first component जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, एंड जो B कंपोनेंट है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है. सो ये दोनों का भी बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, एक के बाद एक फटाफट आ रहा है. 50 and 55 डिफरेंस इज ओनली ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस. तो इससे क्या होगा कि वो दोनों को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, दोनों का जो सेपरेशन होगा इट विल बी अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बहुत कम है. 5 डिग्री सेल्सियस अगर तुम लोग बॉईल कर रहे हो कोई भी सब्सटेंस को एंड उसके अंदर थर्मोमीटर डिप करो, मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जो है वो ऐसे ही मीन्स विद इन सेकेंड्स पार हो जाता है. तो ऐसे छोटा डिफरेंस होने की वजह से वो दोनों का सेपरेशन होना डिफिकल्ट होता है, एंड ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोला जाता है. ओके, Yes. so I'll give you the statement for azeotropic mixture. So write down, it is a mixture of two liquid. मैं लिखूं? It is a mixture. It is a mixture of two liquids which boils at one particular temperature.
These are called constant boiling mixture. And these are formed by non-ideal solution only. Clear? Yes. Now, azeotropic mixtures are of two types. दो टाइप के होते हैं. Azeotropic mixture with minimum boiling point. Azeotropic mixture with minimum boiling point. So, what is azeotropic mixture with minimum boiling point? Those boiling point is less than either of two pure components whose boiling point is less than either of two pure components. For example, you have ethanol. You have ethanol जिसका boiling point है 351.3. Water है, इसका boiling point है 373 Kelvin. ठीक है. और इसका जो मिक्सचर बनता है, a mixture of ethanol and water, इसका जो boiling point आएगा, that is 351.15 Kelvin. So you can observe the boiling point of mixture is less than both the components. Yes. So such mixture is known as azeotropic mixture with minimum boiling point. अभी मुझे बताओ mixture का boiling point कम क्यों हुआ रहेगा? Why boiling point has decreased? क्योंकि interactions कैसे हुए रहेंगे? Yes, all of you. Weak. The interactions in mixture has got weak, and therefore ये क्या हो गया? Boiling point इसका decrease हो गया. So now अभी मुझे बताओ ये कौन से नॉन आइडियल के साथ में मैच करता है? पॉजिटिव डिविएशन की नेगेटिव डिविएशन? कम हुआ ना तो नेगेटिव. Positive deviation. Positive deviation. So this mixture shows positive deviation. Okay. This is clear, all of you? Yes. Yes, ma'am. मैम मतलब Take- कम हुआ तो पॉजिटिव और ज्यादा हुआ तो नेगेटिव. हाँ शालू, ये अभी हम लोग ने यहाँ पे किया ना, ये पॉजिटिव डिविएशन. इसमें क्या हुआ था? इंटरैक्शन वीक हुआ था ना. हाँ. सो वीक इंटरैक्शन यानी अगर तुम्हारा इंटरैक्शन वीक होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा ना. बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तुम्हारा जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, एंड जितना कम वेपर प्रेशर मीन्स ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. बराबर ना ऑल ऑफ यू? आर यू ऑल एग्री विद दिस? यस. Yes. चलो अभी नेक्स्ट है मैक्सिमम
Azeotropic mixture with maximum boiling point. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? Boiling point is more than either of pure components. Two pure components. अब इसका एग्जाम्पल देखो. You have nitric acid. इसका boiling point है 359 Kelvin. And you have water. इसका boiling point है 373 Kelvin. और इसका जो मिक्सचर होगा इसका जो boiling point है it will be 393.5 Kelvin. Means it is more, na? Yes, all of you? Yes. So now, why it has become more? Interactions कैसे हो गए? Stronger. Interactions have become stronger in a mixture. So stronger interaction यानी कौन सा deviation Negative. करेगा? Yes, it forms solution Negative deviation. negative deviation. Okay, all of you. You can take screenshot. Yes, all of you. We also have numericals on this topic, but we'll do it in next lecture. Okay. Akhilesh is there? Okay, ma'am. Yes, ma'am. हाँ अखिलेश क्या पूछ रहे हो? पूछो क्या पूछना है एग्जाम के रिलेटेड. क्वेश्चन नहीं, वो कल के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन चाहिए था. 61. एक मिनट मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ. कितना मार्क्स आ रहा है अखिलेश? मैम करेक्शन हुआ, कल का जो क्वेश्चन था उसको लेके 120 हुआ. तो कर लिया तुमने 120 क्रॉस? वो करेक्शन के वजह से 120 हुआ ना, अदरवाइज नहीं हो रहा है ना अखिलेश? ऐसे तो 110 हुआ. हाँ. The total number of voids. इसको रिमूव करूं मैं? सब लोग का हो गया ना स्क्रीनशॉट्स लेके? मैम लास्ट स्क्रीन वन. डन? Yes, ma'am. सिक्सटी वन में क्या बोला है? The total number of voids in 0.8 moles of compound forming hexagonal close packed structure is. So for 1 mole, all of you, how many atoms? So for 0.8, it will be how much?
इतने एटम्स है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे ऑल ऑफ यू? 2 into 4.8 तो कितना होता है वो? 9.6 into 20 10 raised to 20 9.6352 into 10 raised to 23 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? उतने ही ना? yes अभी टोटल वॉइड्स बोला है ना तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा 14.4 into 10 raised तो ये कितना होगा? 8 11 4 5 14 ओके अखिलेश क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रॉन्ग दिया है ना? क्या क्या 55 का आंसर रॉन्ग दिया है ना पीडीएफ में? 55 में रॉन्ग दिया है आंसर? मुझे आंसर क्या है नहीं मालूम है इसका। पीडीएफ में दिया है मैम लास्ट में। अच्छा लास्ट में दी ये इसका विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन, बट यहाँ पे इन लोग ने गैमा, अच्छा गैमा फॉर रोम्बिक मैम इसमें मैम रोम्बिक था ना तो इसमें एक कंफ्यूजन था कि ऑर्थोरोम्बिक है या फिर रोम्बोहेड्रल है, पर ऑर्थोरोम्बिक का होगा तो ये आएगा। ऑर्थोरोम्बिक आएगा, रोम्बिक यानी ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल नहीं आएगा। मैम हाँ एक क्वेश्चन था, मींस लाइक अगर कोई क्रिस्टल को हम लोग हीट करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है? हाँ एक मिनट, एक 55 में ऑर्थोरोम्बिक का क्या आएगा? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। सो C आना चाहिए इसका ऑप्शन। 55 का आंसर C है अखिलेश। ये साक्षी, तो हम अभी सपोज हम लोग हीट कर साइड, दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो उसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, बराबर ना? अभी सपोज ये तुम्हारा एटम्स है जो एक दूसरे से ऐसा कनेक्टेड है, जब भी हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये एक्साइट होके क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। एंड जब भी हम लोग इसको प्रेशराइज करेंगे, व्हेन यू विल इंक्रीज द प्रेशर, तो ये नजदीक आएंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। ओके एनीथिंग एल्स? मैम 70 वाला। Magnetism that arises due to presence of unpaired electrons. Ferromagnetism. मैम 55 है। मैम पैरामैग्नेटिज्म होना चाहिए ना? पैरा भी हो सकता है और फेरो भी हो सकता है इसका मैम आंसर। मैंने फेरो किया था तो रॉन्ग मैम दिया। पैरा आएगा मैम। बट फेरो में भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट मैम पैरामैग्नेटिज्म राइट दिया है। इट कैन बी पैरा एंड फेरो बोथ। मैम पर फेरोमैग्नेटिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाता है, मतलब वो मैचिंग में एमटीजी में था, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म का सारे पेयर्ड थे उसके। फेरो में कैसे हो सकते हैं पेयर्ड सारे? मैम वो स्पिन वाला मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी नहीं दिखा था कि फेरोमैग्नेटिक में अनपेड रहेगा। पैरामैग्नेटिज्म में सीधा लिखा है मैम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 1 और 2 अनपेयर्ड। मैंने गूगल पे भी चेक किया तो पैरामैग्नेटिज्म ही आ रहा है। बट फेरो में भी अनपेड। यस हाँ,
आयन लो, कोबाल्ट लो, निकल लो, सब लोग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैग्नेटिज्म Yes, अराइज ma'am. भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। अभी डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड से, दैट इज बिकॉज इट डोंट हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट Yes, डोंट ma'am. हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरा और फेरो दोनों भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। पैरा कम शो करता है, फेरो स्ट्रांगली शो करता है, दैट इज बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फेरो आर मोर। पैरा में 1-2 होते हैं, बट फेरो में कंपैरेटिवली ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है। मैम क्वेश्चन नंबर 55 मैं भी प्रदीप से देख रही हूँ, तो स्टेटमेंट मुझे भी ये मिला है कि पैरा में दे कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और फेरो में वो स्टेटमेंट नहीं है, बट फिर भी फेरो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्यों है फिर? व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक? बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Yes, ma'am. और उसमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, अभी ये जो फोटो है, फोटो में भी फेरो के सब अनपेयर्ड शो किए हैं, एंटी में इक्वल है और फेरी में 1-2 ही है अनपेयर्ड, so it can be B and C both unpaired. Magnetism arises due to presence of unpaired electron, it will be both para and ferro. Okay, anything else? Memo 69. 69 P4 यानी phosphorus. Phosphorus is an example of, phosphorus conduct करता है क्या इलेक्ट्रिसिटी? नो। सेमीकंडक्टर नहीं है वो, इंसुलेटर। या और क्या? मतलब मैंने वो मिक्स होके बनाता ना पी टाइप ऐसा। क्या क्या? मतलब इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है ग्रुप 15 का। सेमीकंडक्टर जो बनते हैं वो ग्रुप 14 में से रहते हैं, एंड उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग 13 और 15 ग्रुप का। 71 का आंसर गलत है इसके अंदर। ये देखो, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। आंसर ही अलग आ रहा था। Compound AB form NaCl type of crystal in which radius A plus is 2 and B is 64. Calculate the volume of unit cell. So unit cell का volume जो है वो A cube होता है, ठीक है। So 2R plus R minus that is equal to A, बराबर ना? So 2 into 2 plus 64. That is how much? 2 into 66. That is 132. So 132 का क्यूब करना है अभी अपने को। मैम बहुत बड़ा आंसर। हाँ, ये कुछ 22 ऐसा कुछ तो अब बहुत बड़ा आंसर आता है। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। एंड वो ऑप्शन में नहीं है, इट इज 22999968। यस मैम, यही आ रहा था। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए मैंने बोला है कि उसमें एरर है। मैम 81 जरा बताइए ना। 81 और cation X occupy 1/6 of tetrahedral void. Cation Y occupy 1/3 of octahedral void. Anion Z form CCP. So Z जो है वो CCP है, इसका मतलब it is going to be 4. फिर X जो है वो 1/6 tetrahedral void occupy कर रहे हैं, so 1/6 into 8 that is 4/3, and Y जो है वो 1/3 octahedral void occupy कर रहे हैं, 4/3 आएगा। so अभी इसका रेशो लो। आंसर तो अलग ही आया। हाँ मैम। इसीलिए मैम का आंसर डिफरेंट आता है। मैम x1 आएगा, y1 आता है और z3 आता है। ये आ रहा है आंसर, so it is 1:3 आएगा आंसर।
X, Y, Z. यस मैम 1:1:3 यही आना हाँ पर मैम चाहिए, उसमें ऑप्शन में है ही ऑप्शन नहीं। नहीं है, इसलिए मैंने ये डी है कर ना, दिया। बी ऑप्शन है ना, वो वही तो है। ये क्या दिया है बी? ये ऑप्शन 2:6, Y 1:3 and O. So this is nothing but 1:3 only ना. यस मैम। So आ गया ना, बी है ऑप्शन। यस मैम। सी भी है, हाँ मैम सीधी। सी भी है, बी एंड सी बोथ है इसका आंसर। वो ऑप्शन ही नहीं दिया ना मैम। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है इसका? मैम बी और सी दोनों आएगा ना फिर। हाँ हाँ मैम बी और सी। मैम 72। Copper crystallizes in FCC and cell edge length is 495. What is the radius of copper? ये नहीं आया करने के लिए, it is very simple. FCC है, so radius पूछा है, edge length क्या है? R is equal to A√2/4. आंसर मैच नहीं हुआ है। हाँ आया मैम। नियरर आएगा। 175, B option. Anything else? मैम 75। 86. मैम 75। Okay, 75, 86. They calculate the ratio of density of BCC and FCC. Its edge length is 2 and 2.5 picometer. So density of it will be what? Z into M. So M cancel हो जाएगा, Na cancel हो जाएगा. So it is Z upon A cube. This is for this. So ये 2 आएगा और A क्यूब यानी 2 क्यूब. कितना आएगा इसका आंसर? चेक करो. $0.97. A option. Next कौन सा बोला? 86 ना? Yes. In a compound, Z occupies center position of cube. Means Z is 1. X occupy the center position. H के centers occupy करते हैं. But 4 edges are removed. Formula is. So 12 में से 4 edges को remove 8। किया यानी 8 बचे ना. So into 8 आएगा. X to Z. B option. Paper was so easy. सब direct questions. Anything else?
Done now, all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. चलो सो हम लोग स्टॉप करते हैं. बाय बाय. Thank you, ma'am. बाय. Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय. Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू मैम. बाय.